Surgical Unit 3, and today we will discuss about the history and examination of the peripheral vascular disease. The objective of today's presentation would be that you should know the detailed history along with the examination, because as far as the examination is concerned, when you go into your exam hall for the short case, it is not necessary that you will take the detailed history at that time, but your viva can be from the history. So you should have the background knowledge regarding the history. That is why the detailed history is important for making your differentials, for making your proper diagnosis. And so let's move on a detailed history regarding the peripheral vascular disease. So first of all, the age is important. As you all know that usually the peripheral vascular diseases are common in the old age, and it is because of the atherosclerosis. So the age is important to ask about in the history. The second thing is the gender. It is important because few diseases are common in the male population, while a few are common in females, and a few diseases are common in both gender. Like the Berger's disease, you must have read about it. Like the Berger's disease is commonly seen in the males, and it is common in between 20s to 40 years of age. And it is the most common cause for the Berger disease is smoking. So it is if the male is coming to you with the peripheral vascular disease and the lesion is present in the lower limb, and along with this, the patient is having the history of smoking. So you must have the differential in your mind that the patient can have the disease of the Berger's disease. Second, if the patient is female, and we are just taking the examples. So if the patient is female of young age and she is complaining of pain in the upper limb, especially in the hands, and she is complaining of the pallor associated with the pain in the fingers, which is aggravated in the winter season. So it is usually in the Raynaud's disease. The third example can be the diabetic arteriopathy, which is common in the middle age, and it can affect both gender. So by asking these questions, you can have a differential in your mind. The first question is the age. The second is related to the gender, to make that a differential. Third is that the disease is affecting the upper limb or the lower limb. Okay. So the Berger disease usually affect the lower limb. Diabetic arteriopathy or the neuropathy is usually common in the upper limb. So you will ask first जो है आपका कौन सा लिम्ब जो है वो अफेक्ट है, कहाँ पे जो है वो उसको प्रॉब्लम है. सेकेंड थिंग इज कि उसको जो है वो एक ही पाँव में, as we are discussing about the peripheral vascular disease which is affecting the lower limb, so we will discuss about the lower limb more. So आप उससे क्वेश्चन करेंगे पेशेंट से कि आपका जो है वो लोअर लिम्ब में एक पाँव में मसला है या दोनों पाँव में मसला है. दूसरी चीज़ ये है कि पहले भी कभी कोई इस तरह की डिजीज़ उसको हुई है पास्ट में या नहीं. ठीक है. तो Berger disease, for example, it's commonly seen in the patient while you are attending the OPDs. So it is usually bilateral. Okay? तो आपने ये पूछना है कि एक तो लोअर लिम्ब में अगर कोई लीजन है तो वो बायलैटरल है, पहले भी कोई अफेक्ट हुआ है इस तरह का लीजन,
और यूजुअली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, गैंग्रीन है, इट कैन बी बायलैटरल और यूनिलैटरल डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ द डिजीज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन हो गया एज। जेंडर वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। थर्ड इज द विच लिम्ब इज अफेक्ट and which side of the limb, whether it is bilateral or unilateral. The other question you will ask about the mode of onset कि जो है ये लीजन या कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कोई अल्सर है या कोई जो है पेन है लोअर लिम्ब में, आप उसको पूछेंगे कि व्हाट इज द मोड ऑफ ऑनसेट, कि ये जो है ग्रेजुअल स्टार्ट हुआ या जो है इसका स्टार्ट जो है वो सडन ऑनसेट था, कि ये डिजीज आप एकदम से शुरू हुई या जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, कुछ महीनों से ये डिजीज चल रही है या जो है वो कुछ दिनों की हिस्ट्री है। तो इससे आपको डिजीज की क्रॉनिसिटी जो है वो पता चलती है, लाइक कि क्रॉनिक है या एक्यूट ऑनसेट डिजीज है। Like the gangrene which occur due to the atherosclerosis is usually can have the history of chronic illness. अगर एम्बॉलिक कोई गैंग्रीन है तो उसका जो है तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, दूसरा ये कि उसके सडन ऑनसेट होगा। ठीक है, पेशेंट आपको बहुत ही सिवियर पेन की कंप्लेन करेगा। थर्ड थिंग इज डायबिटिक गैंग्रीन विच कैन बी बिकॉज ऑफ पेशेंट जो है उसको रिलेट करता है विद स्लाइड ट्रॉमा because it is usually diabetes is usually associated with the neuropathy along with the vascular disease. तो जब उसको कोई भी ट्रॉमा होता है तो वो न्यूरोपैथी की वजह से फील नहीं होता। तो उसके बाद मल्टीपल वहाँ पे जब ट्रॉमा होते रहे तो वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं that can eventually change into gangrene। एक आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री मिल सकती है। ये हो गया आपका मोड ऑफ ऑनसेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग द पेन। अगर उसको जो है लोअर लिम्ब में दर्द है तो आपने उनसे पूछना है कि दर्द जो है किस टाइप का है, पूरे लिम्ब में होता है, कौन सा पार्ट जो है वो लिम्ब का इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती हैं, बिकॉज एक तो आपको साइड से यू विल नो अबाउट पेन के साइट और करेक्टर में मीन्स आपने ये पूछना है कि पेन जो है वो किस तरह का है, दूसरा किस पाँव में किस साइड पे जो है वो फील होता है, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द साइट ऑफ ऑक्लूजन। अगर जो है पेशेंट को थाई में पेन है, काफ में पेन है, फुट में पेन है या जो है बटक में पेन है, तो इट विल शो यू अबाउट द level of occlusion, which artery is involved. That is why the site of pain is important। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने उसके करेक्टर पूछना है कि किस तरह का पेन है, क्रैम्पी है या जो है एक्सरसाइज से, रेस्ट से जो है उसकी एसोसिएशन आपने पूछनी है। एक तो दर्द कहाँ पर होता है ये आपका क्वेश्चन होगा, दूसरा किस तरह का दर्द होता है कि जो है, और तीसरा ये कि हर वक्त रहता है या वो कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है। चौथी चीज आपने ये पूछनी है कि किस पार्ट को जो है इन्वॉल्व किया है लोअर लिम्ब के पाँव जो है पाँव के टांग के ऊपर वाले हिस्से में है, पीछे की तरफ है, ये सारी चीजें आपने पूछनी है। ठीक है, तो when the circulation of the limb is impaired, there are two types of pain usually, which are the claudication and the rest pain। एक होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, आपको उसका पता होना चाहिए, रेस्ट पेन का पता होना चाहिए। तो ये आपके डिफरेंशियल जो है उससे आपकी बनेगी। ठीक है, पेन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा
Now, what is intermittent claudication? Intermittent now, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? So the intermittent claudication is the muscle pain which is usually felt in the calf, and the nature would be crampy, and the pain usually relieve when the patient stops working. ठीक है, तो उसकी कंप्लेन होगी कि जब वो चलता है या कोई एक्सरसाइज करता है तो उसमें उसको पेन फील होता है, एंड देन दिस डिस्टेंसेस, जब जो वो चलता है और उसको पेन फील होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक टिपिकल आपको हिस्ट्री मिलेगी पेन की।
Second is the site of pain. As I have already told you that the site of pain is very important to know about the which territory of artery is blocked because of the occlusion. ठीक है, तो अगर पेन जो है पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि फुट में है पेन, देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ द बर्जर डिजीज, और यूजुअली ये अफेक्ट करती है लोअर टिबियल जो वेसल्स हैं उसको, या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर काफ में पेन की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, तो यूजुअली द occlusion is at the level of the femoropopliteal junction. If the patient is complaining the pain in the thigh, then the occlusion usually involved at the superficial femoral artery. While if patient complain of pain in the buttock, then the occlusion is at the level of bifurcation of common iliac artery or the aorta. That is why the site of pain is very important. The second type of pain is, ये तो हो गया कि एक पेशेंट आपको बताएगा कि उसको रेस्ट जो है पेन फील हो रहा है जब वो वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस दौरान उसको पेन फील हो रहा है। ठीक है, सेकंड चीज होती है कि उसको रेस्ट में भी पेन है, दिस इज कॉल्ड रेस्ट पेन। अब दोनों में डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मींस कि वो इंटरमिटेंट टाइप ऑफ पेन है विच इज क्रैम्प इन नेचर, जबकि जो रेस्ट पेन है इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर एंड इट इज ऑफ एकिंग वैरायटी। ठीक है, कंटिन्यूअस उसको पेन रहेगा जो कि ख़त्म नहीं होता, या तो उसकी सिवियरिटी जो है वो माइल्ड मॉडरेट सिवियर हो सकती है, लेकिन it is present all the time. Second, it is because of the ischemia, and this pain worse at the night. It is aggravated by the elevation of leg above the level of heart, and it is relieved by hanging the leg below the level of heart. ये क्यों होता है? रीजन इसका बिकॉज अगर आप लेग को एलिवेट करें अबव द लेवल ऑफ हार्ट तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है लेग की, उसकी वजह से स्कीमिक पेन होता है और पेशेंट जो है वो पेन के एकिंग टाइप ऑफ पेन जो है उसकी कंप्लेन करता है। दो तरह के जो है वो पेन हो गया है। फिर आ जाते हैं और क्या उसको सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो पेन हो गया मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में। सेकेंड इज कोई भी लीजन, कोई अल्सर है, ठीक है, अल्सर अगर है वो आपको बहुत कॉमनली मिलता है। पेरिकोज की और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मोर और लेस जो है कुछ आपस में सिमिलैरिटीज हैं। अल्सर आपको जो मिल जाएगा, अगर पेशेंट कहता है कि उसको पाँव में कोई जो है अल्सर बना हुआ है, उसका आपने क्या पूछना है, एक तो ड्यूरेशन कि कब से है, किस तरह से ये जो है शुरू हुआ, इसका ऑनसेट हो गया कि जो है एकदम से ये अल्सर जो है वो बना है, कुछ दिनों में बना है, कुछ महीनों की हिस्ट्री है। तो अगेन आपकी जो है वो डिफरेंशियल इससे चेंज हो जाती है कि वेदर इट इज बिकॉज ऑफ वीनस कोई डिजीज की वजह से हुआ है या कोई आर्टीरियल डिजीज की वजह से हुआ है, क्योंकि अल्सर के डिफरेंशियल अलग आ जाते हैं। आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं, वीनस अल्सर्स होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्सर की भी डिटेल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है टू नो अबाउट द वैरायटी ऑफ डिजीज और डिफरेंशियल ऑफ डिजीज। थर्ड चीज आ जाती है कि कोई हिस्ट्री अल्सर की जो है वो ट्रॉमा से रिलेटेड है, कोई ट्रॉमा हुआ था उसके बाद ये अल्सर बना है। फिर प्रोग्रेस किस तरह से हुई, स्लोली प्रोग्रेस हुआ है या जो है वो उसका प्रोग्रेस सडन है, कोई डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इन्फेक्टिव कंपोनेंट होगा तो उसमें प्रोलेंट डिस्चार्ज होगा, या जो है मैलिग्नेंट अगर अल्सर है तो उसमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा, सीरस डिस्चार्ज, और अगर है यूजुअली तो वो वेनस में कॉमन होता है। एंड आल्सो अल्सर कैन बी एसोसिएटेड विद द पेन एज वेल। Other question will be the discoloration, black discoloration. It could be the black discoloration or the pallor. Okay, तो ये आपकी जो है वो हिस्ट्री। इसके अलावा आपने और क्या चीज़ें पूछनी है। पैरेस्थीसिया, पेशेंट कैन कंप्लेन टू यू अबाउट द numbness in the lower limb associated with the pins and needle sensation, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉमन इन द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, पेशेंट कैन हैव हिस्ट्री ऑफ फैंटलिंग, ट्रांसिएंट ब्लैकआउट, चेस्ट पेन,
वीकनेस, पैरेस्थीसिया एंड द ब्लड विजन। ठीक है, अब ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ये एक तो उसको जो आपने हिस्ट्री ली सारी, वो आपको पता चलेगा कि जी उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज तो है, लोअर लिम्ब में तो कोई मसला है, ऑक्लूजन है किसी लेवल पे आर्टरी की। लेकिन अगर इसके साथ ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो इट मीन्स कि उसके प्राइमरी सोर्स जो है या कोई और डिजीज भी प्रेजेंट है इसके साथ एसोसिएटेड। लाइक अगर उसको फेंटिंग की कोई कंप्लेन है तो ही और शी मस्ट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, कोई ब्लैकआउट की हिस्ट्री है, ब्लड विजन की है, तो स्ट्रोक की हिस्ट्री उसको प्रीवियस हो सकती है। इसके अलावा वीकनेस है कोई लिम्ब की, तो वो भी स्ट्रोक के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। चेस्ट पेन की हिस्ट्री है तो कार्डियक कोई डिजीज हो सकती है। इसके अलावा पास हिस्ट्री में आपने कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस उसका मालूम करना है कि इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ एंजाइना, कार्डियक फेलियर और एनी हिस्ट्री ऑफ सर्जरी लाइक कार्डियक कैबेज सर्जरी है, और कोई जो है हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, ये आपने पास हिस्ट्री में पूछ लिया। पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है जिसमें एक्सेसिव स्मोकिंग, क्योंकि इट इज most commonly associated in the patients who are suffering from the peripheral vascular disease. And again, the family history, which is because atherosclerosis runs in the family, तो ये आपने पूछनी है। ये सारी चीजें आपकी हो गई हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हम अगर एक दफा फिर से इसको रिव्यू करें, ये यूजुअली एसोसिएटेड ये सारी चीजें आपने पूछनी होती हैं। लाइक हमने शुरू किया, एक तो चीज हो गई आपकी एज आपने पूछी पेशेंट की, दूसरा ये कि अगर लोअर लिम्ब में है तो कौन सा लिम्ब इन्वॉल्व है, दोनों लिम्ब्स में हुआ है, पहले कोई उसको जो है इसी तरह का कोई मसला पहले भी कभी हुआ है, अगर कोई अल्सर है तो पहले कभी जो है इसी पाँव में या दूसरे पाँव में उसको इस तरह का मसला रहा है। फिर आपके सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो आ जाती है। सिम्टम्स में आपने उसको पेन का पूछना है कि पेन किस तरह का है, रेस्ट में पेन फील होता है या जो है एक्सरसाइज के दौरान या चलने के दौरान उसको पेन होता है। अगर जो है पेन है तो पेन के जो है किस तरह का पेन है, किस वक्त ज़्यादा होता है, रात में है या नहीं है, रिलीफ किस तरह से होता है। इसके अलावा जो है फिर उसको कोई अल्सर है तो अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पूछ लिए। फिर पैरेस्थीसिया उसको है या नहीं है, कभी कोई कलर चेंज उसने नोटिस किया है लोअर लिम्ब में, और जो है पाँव सुन तो नहीं हो जाते हैं, इस तरह तो नहीं लगता है कि जो है पाँव में सुइयां चुभ रही हों। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपको उसी के लैंग्वेज में पूछने हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स में आपने पूछ लिया कि कभी उसको जो है फालिज का कोई अटैक हुआ है, कभी सीने में दर्द की शिकायत रही है, और पास हिस्ट्री में हो गया कोई दिल की बीमारी हुई है, दिल की कोई सर्जरी हुई है, इसके अलावा कभी हार्ट अटैक हुआ हो या शुगर की कोई बीमारी हुई हो, इसके अलावा ब्लड प्रेशर है या नहीं। पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग अगर है हिस्ट्री पॉजिटिव तो कितनी पर डे जो है वो सिगरेट्स जो है वो कंज्यूम करता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में आ गया कि कभी के बहन भाइयों में पेरेंट्स ने जो है उसको कोई इस तरह की डिजीज़ हुई है, कोई कार्डियक डिजीज़, डायबिटीज़, इस तरह की कोई डिजीज़ है, ओबेसिटी है। ये सारी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हो गई। इससे क्या चीज़ होगी कि आपको एक तो जो है डिफरेंशियल आपके बनेंगे, डिफरेंशियल के बाद आप उसको एक जो है आपका डायग्नोसिस बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन जो हमारा है कि एग्जामिनेशन आपको जब शॉर्ट केस यूजुअली होता है, शॉर्ट केस में 10 मिनट्स आर अलाउड टू यू फॉर द एग्जामिनेशन। आप कोशिश करें कि आपके एग्जामिनेशन विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत इजी एग्जामिनेशन होती है, आप एक दूसरे पे ट्राई करें और रिफ्लेक्सेस आपके इतने बन जाने चाहिए कि 5 to 7 मिनट्स में आपके कंप्लीट हो, ताकि आपका वाइवा प्रॉपरली हो और आप जो है वो अपने नंबर स्कोर कर सकें। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपके जो एग्जामिनर है उसके पास एक चेक लिस्ट होती है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते जाएंगे यू विल गेट द मार्क्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास है, ऑलवेज यू हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट थिंग, आपने पेशेंट को जो है ग्रीट करना है, इंट्रोड्यूस करना है। यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कंफर्म द पेशेंट नेम और आस्क अबाउट द नेम ऑफ द पेशेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू वांट टू एग्जामिन
tell him or her that what do you want to examine exactly. You will ask for the consent. Then the most important thing is adequately expose the required area for the examination. And the third, the second most important important thing is the position of the patient, and ask the patient if they have any pain. ठीक है, यूजुअली ये पूरी चीज़ों में आपका हाफ मिनट से भी कम जो है वो टाइम लगता है। आप गए, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, आप पेशेंट के पास गए, एग्जांपल के तौर पे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिना है और आपका नाम क्या है? फॉर एग्जांपल पेशेंट का नाम जो है हम ले लेते हैं काशिफ। तो काशिफ साहब, मैं आपको जो है आपके पाँव का जो है मुआयना करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। ठीक है, आपको कॉन्सेंट मिल गया। उसके बाद आपने पेशेंट का जो है वो कहना है कि आप जो है अपना ट्राउज़र जो है वो थोड़ा ऊपर कर लें ताकि मैं आपके पाँव का मुआयना कर सकूँ, और शर्ट को थोड़ा आपने ऊपर रखना है क्योंकि मुझे आपके पेट का भी मुआयना करना होगा। और पोजीशन जो है, जैसे कि इसमें कि पेशेंट की पोजीशन शुड बी एट 45 डिग्री। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिलैक्स रहें, आप जस्ट आपने ये चीज़ एग्जामिनर को इन्फॉर्म करनी है। ठीक है, और पेशेंट का आपने पूछना है कि आपको जो है कहीं कोई पेन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें कितनी देर लगी आपको? लेस देन अ मिनट। ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस किया, उसका नेम पूछ लिया ताकि एक डॉक्टर पेशेंट रैपो जो है वो डेवलप हो। उसके बाद अब दो चीज़ें यहाँ पे आपने एग्जामिनर को बतानी है कि आई वॉन्ट, क्योंकि आप एक लिमिटेड एक्सपोजर करते हैं, आपने एग्जामिनर को कहना है कि आई वॉन्ट टू एग्जामिन द पेशेंट बाय रेजिंग हिज trouser above the knee, but the adequate exposure is that from the abdomen up to the toes, and the patient should have only the underwear. But to maintain the dignity of the patient, I am just exposing the limited part for the examination. And the standard position for the examination of a peripheral vascular system is that the head should be at the 45 degree angle. If the patient is supine, or then it's fine. ये दो चीज़ें आपने एग्जामिनर को बता देनी है। ठीक है, अच्छा, फिर इंस्पेक्शन में ऑलवेज कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ द limbs. इसमें आपने जब भी आप एग्जामिन करेंगे हमेशा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साइड्स दोनों को कंपेयर करना है, सो दैट यू कैन एंड नोटिस द एबनॉर्मलिटी प्रॉपरली। ठीक है, लाइक आपने राइट साइड पे उसके जो है पेशेंट के खड़े होना है, और सबसे पहले जो है आपने क्या देखना है, एनी चेंज इन द कलर ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, फिर आपने इसके अलावा क्या क्या चीज़ें नोट करनी है कि कोई पैलर है लिम्ब, या जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन है, स्किन बिटवीन द टोज जो है वो कैसी है, स्कार है कि नहीं है प्रेजेंट, एम्पुटेटेड कोई जो है टो है या नहीं है, ये चीज़ आपने नोटिस की इंस्पेक्शन। सबसे पहले आप जो है राइट साइड पे खड़े होकर ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, और उसके बाद जो है फिर आप जो है जाएंगे एट द फुट एंड, और वहाँ पे जो है इंस्पेक्शन सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है। देन द साइंस ऑफ इस्कीमिया, लाइक थिनिंग ऑफ स्किन है, जब वेस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज होती है लोअर लिम्ब की, तो क्या ये चीज़ें होती हैं, स्किन जो है वो थिन हो जाती है, सबकुटेनियस फैट जो है वो लॉस हो जाती है, मसल वेस्टिंग होती है, डिमिनिश हेयर ग्रोथ होती है, शाइनिंग जो है स्किन की वो लॉस हो जाती है। इसके अलावा जो नेल्स हैं वो उस पर ट्रांसफर्स रिजेस जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं, ब्रिटल नेल्स होते हैं, अल्सर्स आपको मिल रहे होते हैं, लीजन्स आपको जो है वो लोअर लिम्ब में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है इंस्पेक्शन पे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम साथ साथ इसकी वीडियो देखते जाएंगे ताकि इस चीज़ें आपको जो है समझ आती जाए। इंस्पेक्शन की हमने बात कर ली। इंस्पेक्शन में
सबसे पहले तो एक मैं आपको पहले पिक्टोरियल बता दूं। इंस्पेक्शन में आपने ये हो गया, आप फुट एंड पे जब खड़े हो गए और साइड से भी आपने चीजें देख ली, स्कार देख लिया, कोई एम्पुटेटेड जो है टो है वो देख लिया, पैलर है या नहीं है, हेयर लॉस प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा जो है ठीक है, कोई अल्सर प्रेजेंट है या नहीं, स्किन बिटवीन द टोज आपने जो है वो देख ली। इसके अलावा जो है वीनस अल्सर्स देख लिए, आर्टीरियल स्किन बिटवीन द टोज आपने देख ली। इसके अलावा हमने जो है ये सारी चीजें देखी। एम्पुटेटेड कोई टो है या जो है जेंथोमास जो है वो आपने नोटिस किए। अब यहाँ पे जो है ये मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जिसपे हम सिर्फ अभी इंस्पेक्शन देखेंगे और एंड में जब हमारी खत्म होगी प्रेजेंटेशन तो फिर हम दोबारा से ये वीडियो जो है वो देखेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इसमें I'm just going to have a look at your legs and your feet now. Is taking the consent from the patient for examining the lower limb, and is standing on the right side of the patient and examining all the features which we have discussed. Let's have a look at your toes now. Now we're going to ask you to lift your right leg up, please, Colin. That's great. And your left leg now, please. Let's have a look at your toe. Let's have a look at your legs and your feet now, Colin. All right. अब आप लोगों को दिख रही है वीडियो? Can you see the video? Okay. So first of all, you will stay on the right side of the patient and I'm just going to have a look at your legs. he's taking the consent examination from the right side of the patient. Let's have a look at your toes now. You can examine this on the right, from the right side of the patient as well as at the foot end of the patient.
If we're going to ask you to lift your right leg up, please, Colin. Now the back of the leg, you should examine the back of the leg as well for any ulcer or any abnormality. And can you wiggle your toes for me, please, Colin? I'm just going to assess the temperature in your legs and your feet. So we have discussed the inspection हमने की. अब हम आते हैं palpation पे. Palpation पे आपने क्या क्या चीजें नोटिस करनी है. First of all, the temperature. Temperature is usually felt from the dorsal aspect of the hand because it is best felt from this side. Dorsum of the hand से आपने feel करना है. इसके अलावा आप symmetrically जो है वो check करते जाएंगे limbs को. Usually जो vascular insufficient limb होता है उसका जो टेम्परेचर होता है कोल्ड होगा और पैलर होगा. ठीक है, तो टेम्परेचर आपको क्या फील होगा? कोल्ड. अदरवाइज यूजुअली अगर आपको नॉर्मल पेशेंट मिला है तो वो नॉर्मल थर्मिक होगा, मींस नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिलेगा. ठीक है. सेकेंड इज द टेंडरनेस. ठीक है, अब टेंडरनेस के लिए आपने क्या करना है, जिस तरीके से टेम्परेचर आप चेक करते हैं बैक ऑफ हैंड से 3 जगह पे आपने टेम्परेचर चेक करना है. एक तो फुट हो गया, सेकेंड आपका जो है लेग हुआ, और थर्ड जो आपने चेक करना है टेम्परेचर वो करना है थाई में. इसी तरीके से टेंडरनेस भी आपने जो है दोनों हाथों से जो है वो चेक करनी है. एक तो फुट, देन लोअर लेग, एंड थर्ड पॉइंट इज थाई. तो ये आपने टेंडरनेस होती है कि दोनों हाथों से आपने प्रेस करके दोनों हाथ जो है वो अपने लिम्ब को प्रेस करके लाइटली फील करना होता है. और पेशेंट के फेस की तरफ आपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नोटिस करना होता है कि वेदर द पेशेंट इज फीलिंग पेन और नॉट. तो वो आपने 3 पॉइंट्स पे देख लिया है कि फुट में पेन है या नहीं है, टेंडरनेस है या नहीं, और लेग में टेंडर है या जो है थाई में टेंडर है. अगर नहीं है तो मीन्स के नॉर्मल लिम्ब है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज कैपिलरी रिफिल टाइम. ठीक है, 3 हमारे पास 3 T's हो गए पैल्पेशन में. फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकेंड इज द टेंडरनेस, थर्ड इज द कैपिलरी रिफिल टाइम. ठीक है, तो ये आपको बताता है कि पेरिफेरल परफ्यूजन जो है वो एडिक्वेट है लोअर लिम्ब की या इनएडिक्वेट है. यूजुअली इसमें क्या होता है कि आपने जो है दोनों टोज पे 5 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना होता है. काउंट करें 1 2 3 4 5, और आपने जो है फिर छोड़ के उसमें कैपिलरी रिफिल देखना होता है कि पेशेंट जो है जैसे ही आपने वो प्रेस करके छोड़ा है तो वहाँ पे कलर पिंक हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, यूजुअली इट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल कलर ऑफ पिंक विद इन 2 सेकेंड्स. अगर 2 सेकेंड्स से ज़्यादा है तो मीन्स कि पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन है. ठीक है, तो थर्ड जो चीज आप देखेंगे पैल्पेशन पे वो होगा कैपिलरी रिफिल टाइम. फिर आ जाता है बर्जर्स टेस्ट. यूजुअली दिस इज नॉट बीइंग डन नाउअडेज, इट्स ऑब्सोलीट, लेकिन ये आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए. वहाँ पे आपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं करना, ये जस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज बर्जर्स टेस्ट. ठीक है, पेशेंट आपका सुपाइन पोजीशन में होता है. इसमें ये होगा कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था हिस्ट्री में, if the patient's limb is elevated above the level of heart, then he feels pain and the limb become paler. ठीक है, तो जब आप पेशेंट के लिम्ब और पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, आप उसके लिम्ब को एलिवेट करते हैं
45 डिग्री से 45 डिग्री तक। तो जो इनसफिशिएंट पुअरली परफ्यूज्ड लिम्ब होता है उसमें क्या होता है 20 डिग्रीज पे, 25 डिग्रीज पे या 30 डिग्रीज पे पेशेंट का लिम्ब जो है वो बिल्कुल पैल हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट जो है उसको बाजू का पेन की भी कंप्लेन करता है। तो दिस जहाँ पे उसको ये आपको लिम्ब पेन लगेगा वो कहलाता है उसका एंगल, बर्जर्स एंगल कहलाता है, ठीक है। Means the patient position supine, stand at the bottom of the bed और आपने खुद से उसके लेग पकड़ के वहाँ पर 45 डिग्री पे सपोर्ट करके रखनी होती है और 1 to 2 मिनट्स का आप वेट करते हैं और कलर चेंज जो है वो नोटिस करते हैं, ठीक है। बिकॉर्ली इनसफिशिएंट लिम्ब होगा उसमें क्या होगा 20 डिग्री पे ही पेशेंट का कलर जो है वो पेल हो जाता है और पेशेंट को पेन भी फील होता है। तो आप उस लेवल पे फिर मजीद जो है उसको एलिवेट नहीं करते लिम्ब और दोबारा से जो है न्यूट्रल पोजीशन में आप लिम्ब को रख देते हैं। तो ये आपने परफॉर्म नहीं करना, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बर्गर्स एंगल। नाउ द पैल्पेशन में अब और क्या चीजें आ जाती हैं, पल्सेस। हमने फर्स्ट देखा टेम्परेचर, सेकंड देखा टेंडरनेस, थर्ड चीज आपने देखी कैपिलरी रिफिल टाइम, फोर्थ हम देखेंगे पल्सेस। पल्सेस जो है वो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले या तो आप जो है फेमोरल, देन पॉप्लिटल, पोस्टीरियर टिबियल और जो है डॉर्सल स्पीडस पे जाए और फिर जो है एओर्टिक पल्सेशन आप चेक करें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो सीक्वेंस होगा फॉर पैल्पेशन ऑफ पल्सेस। अब फेमोरल पल्स, ये सारी जो भी पल्सेस हैं इनका आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क पता होना चाहिए जो कि आपसे पूछा जाएगा और आपने उस वक्त परफॉर्म जब आप कर रहे होंगे पल्पेशन तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको लोकेट करना आना चाहिए, एनाटॉमिकल लैंडमार्क, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, फेमोरल पल्स चेक करनी है। फेमोरल पल्स कहाँ पे होती है, इट इज एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट इज एट द halfway between anterior superior iliac spine and the pubic symphysis, ठीक है। वहां पे आपने फेमोरल पल्स फील करनी है। उसमें आपने क्या क्या चीजें, जो भी पल्स आप देखेंगे उसमें एक तो रिदम नोटिस करना है, सेकंड वॉल्यूम ऑफ पल्स, ठीक है। तो एक तो हो गया फेमोरल पल्स आपने देख ली। सेकंड जो आप देखेंगे वो होगा रेडियो फेमोरल डिले। वहीं पर ही एक हाथ आपका जो है, अच्छा यहाँ पे भी आपने कंपेयर करना होगा, दोनों आप साइड्स कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों तरफ साइमल्टेनियसली आपने राइट और लेफ्ट फेमोरल पल्स चेक कर ली। अब आपका एक हाथ जो है वो फेमोरल पल्स पे होगा, दूसरा जो है वो रेडियल आर्टरी पे होगा। टू असेस रेडियो फेमोरल डिले विच इज सीन इन द कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये सारे मैन्यूवर होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें या सारी साइंस आपको पॉजिटिव मिले। एग्जाम का जो मेन आपको उस वक्त एग्जामिनर का मोटिव है वो ये है कि आपको मैन्यूवर आते हैं, आपके बैकग्राउंड उसके से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं, ठीक है। आप पिक कर पा रहे हैं या नहीं वो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपसे कोई चीज मिस हो गई कि नहीं बता सके, लेकिन आपको मैन्यूवर करना आना चाहिए, कहाँ पे आर्टरी लोकेटेड है, लैंडमार्क कहाँ है, कहाँ पे आपने हाथ रखा है, वो ये चीजें आपके मैन्यूवर्स नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी पे आपकी मार्किंग होती है। तो रेडियो फेमोरल डिले आपने चेक करना है कि दोनों पल्सेस जो है रेडियल पल्स एंड फेमोरल पल्स आर सिमेट्रिकल, नॉर्मल इन वॉल्यूम, ठीक है, रिदम नॉर्मल है, ये चीज आपने नोटिस करनी है। फिर हम आते हैं पॉप्लिटल पल्स पे। पॉप्लिटल पल्स जो होगी वो आपको कहाँ पे मिलती है, अच्छा पॉप्लिटल पल्स जब भी आपने एग्जामिन करनी है कभी भी ये नहीं कहना है कि it is palpable or it is of normal volume and rhythm, क्योंकि popliteal pulse is never felt normally। जब भी कोई disease होगी उसमें तो वो feel होती है, क्यों, because it is situated in the popliteal fossa and it is the deepest structure in the popliteal fossa, so normally it is not felt on the palpation, ठीक है। तो अगर आपको पल्सेशन उसकी नहीं मिलती तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको कैसे चेक करना होता है कि द पेशेंट विल बी इन द सुपाइन पोजीशन lying comfortably and you will just flex the knee और आप अपने दोनों जो भी फिंगर्स होंगे उनके पल्प को जो है वो डिप इन करेंगे इन द पॉप्लिटल फोसा और जो है वो पल्स को फील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पैल्पेट करने का पॉप्लिटल आर्टरी को तरीका।
इसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? Posterior, as the name suggests, posterior tibial artery is posterior to the medial malleolus of the tibia. तो वहाँ पे आपने जो है अगेन उसका वॉल्यूम एंड रिदम दोनों राइट एंड लेफ्ट, नॉर्मल एबनॉर्मल एरिया दोनों आपने कंपेयर करना। Fourth is the dorsal spidus artery. Dorsal spidus artery is located on the dorsum of the foot, lateral to the extensor hallucis longus tendon, over the second and third cuneiform bone. ठीक है, वहां पे आपने पालपेट की, आप पेशेंट को कहते हैं कि अपना जो थंब बिग टो है उसको जो है वो एक्सटेंड करें और फिर आप जो है वो फील करते हैं डॉर्सल स्पीडिस आर्टरी को एट द एक्सटेंसर हालुसिस लॉन्गस के लैटरली ओवर द सेकंड एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म बोन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने पल्सेशन जो है वो फील करनी, और ये सारी पल्सेस आपको अगर आपने सही जगह पैल्पेट की हैं तो मिलती हैं। ठीक, देन इज द एओर्टा। एओर्टा आपने इंस्पेक्ट करना है, एब्डोमेन जो है वो आपने एक्सपोज किया हुआ होता है, एब्डोमेन को पैल्पेट किया और उसमें जो है वो आप दोनों हैंड्स को डिप इन करते हैं इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन अबव द अम्बिलिकस। तो उसमें जो है वो क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। अगर थिन लीन पेशेंट होगा यू कैन फील द एओर्टिक पल्सेशन, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है आपकी हैंड की। अगर कोई जो कि आपको रेयरली मिलता है एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म में एक्सपेंसाई मैस है तो आपके हैंड्स जो है वो आउटवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एओर्टिक पल्सेशन। यहाँ पे हमारे जो है ये पैल्पेशन के जो है कंपोनेंट हो गए कि हमने टेम्परेचर देखा, टेंडरनेस देखी, कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो नोटिस किया, फिर उसके बाद पल्सेस जो है वो हमने स्टार्ट की फ्रॉम प्रॉक्सिमल लाइक फेमोरल, पॉप्टिटल and dorsal posterior tibial and the dorsal spinous artery and then aorta, abdominal aorta, ये देख लिया आपने। उसके बाद जो है फिर आ जाता है कि आप किसी वक्त जो है वो ऑस्कल्टेट भी करना है। ठीक है, ऑस्कल्टेट आपने क्या करना होता है कि उसी लेवल पे फेमोरल आपने पल्स जो है जहाँ पे लोकेट की थी वहीं पर ही आपने ऑस्कल्टेट करके देख लिया। ठीक है, कि और ये क्यों करते हैं हम, ब्रूई यहाँ पे चेक करते हैं ब्रूई के लिए कि कोई फेमोरल जो है स्टेनोसिस ना हो फेमोरल पल्स के लेवल पे। एओर्टिक जो है ब्रूई चेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज पॉप्टिटल आर्टरी ब्रूई। ये तीन जगह पे आपने ऑस्कल्टेट कर लिया तो यहाँ पे आपके जो है पेरिफेरल एग्जामिनेशन का आर्टीरियल कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। सेकंड चीज आपकी आती है वो होती है सेंसरी एग्जामिनेशन। फिर आप जो है वो क्या करते हैं कि आपके पास एक कॉटन जो है वो होनी चाहिए जिससे आपने पेशेंट का जो है वो सेंसरी एग्जामिनेशन मीन्स का लाइट टच जो है वो चेक करना होता है। ठीक है, सेंसरी एग्जामिनेशन में यूजुअली पेशेंट जो है उसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्ट्स इन द ग्लाब एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ सेंसरी लॉस। तो एक्यूट लिम्ब अगर इस्कीमिया होगा तो वो उसमें आपका रैपिड ऑनसेट ऑफ पैरेस्थीसिया मिलता है, सेंसरी लॉस आपको मिलेगा उसमें। आप अब जब आप इसमें क्या करना होता है, पेशेंट को आप बताएंगे कि आप जो है एक कॉटन है उसको जहाँ पे टच करेंगे उसने आंखें बंद रखनी है और जब टच हो तो आपको बताना है कि जी हाँ मुझे यहाँ पे ये फील हुआ है, हाँ महसूस हुआ। ठीक है, हाँ बोलना है। तो आप उसका वही 3 पॉइंट्स के फुट पे रखा नॉर्मल, देन एबनॉर्मल साइड, देन लेग के फ्रंट पार्ट एंड देन थाई, उस पर रख के आपने जो है वो पेशेंट से पूछना है कि उसको फील हो रहा है कि नहीं। ये लाइट टच को आप जो है चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे पूरी आपकी कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं होती है, यहाँ पे जस्ट आपने जो एक सिंपल सेंसरी एग्जामिनेशन जो है वो की पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए। और इस तरह से जो है ये आपकी पूरी एक एग्जामिनेशन हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट पे पेशेंट को जो है जो भी तीनों पॉइंट्स पे आप कॉटन रखेंगे और उसको फील होगा तो नॉर्मली उसको कोई सेंसरी लॉस नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम जो है वीडियो देखेंगे। ठीक है, हमने इंस्पेक्शन पहले देखी, अब हम जो है वो
palpation. पैल्पेशन पे, टेम्परेचर हम इन्होंने देखा फुट पे, सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए भी कॉटन आपने जो है वही 1 फुट पे, बैक ऑफ फुट पे आपने रखना है। पेशेंट से पूछना है कि आपको यहाँ पे फील हुआ, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा जी, और फिर आप जो है लेफ्ट साइड पे रखेंगे, फिर उससे पूछेंगे फील हुआ, वो आपको बताएगा जी, ठीक है। तो एक बैक ऑफ फुट पे दोनों साइड पे कंपैरिजन के लिए, दूसरा फिर आपने लेग पे फ्रंट पे, जो है थर्ड आपने जो है वो थाई पे फील करवाना है, ठीक है। If there is a difference of the temperature in the limbs, it means the limb which is affected because of the insufficient supply. So this is the reason of temperature change in the limb. ठीक है। यूजुअली अगर अभी आप अपने लिम्ब का टेम्परेचर देखें तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। जब आप नॉर्मल एक आपको टेम्परेचर का पता होगा तो आप एबनॉर्मल भी चीज जो है वो फील कर सकेंगे। जो एबनॉर्मल होगा वो कैसा फील होगा, कोल्ड फील होता है, ठीक है, कोल्ड लिम्ब होगा। तो वो सजेस्ट करते हैं कि पुअरली वेस्कुलर लिम्ब है, टेम्परेचर का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है। तो एक तो आपने जो है चले वीडियो पहले टेम्परेचर देख लिया इन्होंने, अब कैपिलरी रिफिल टाइम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, पहले पेल होके फौरन से पिंक हो जाती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है डिस्टल से स्टार्ट करें या जो है वो प्रॉक्सिमल से पल्सेशन जो है वो स्टार्ट करें। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है वो प्रॉक्सिमल पल्सेशंस जो है वो फील करना स्टार्ट करेंगे या जो है डिस्टल से स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ये आपकी मर्जी पे। अगर आप डिस्टल से जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप प्रॉक्सिमल से चेक करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया है डॉर्सलस पेडिस आर्टरी से। Now the posterior tibial artery. If you could let me take the weight of your leg now, guys. This is the maneuver for the popliteal artery, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने जो है वो फ्लैक्स किया है नी को, और फिर दोनों हाथ के जो भी फिंगर टिप्स है उसको डिप इन किया है इन द popliteal fossa to find out the popliteal pulse, जो कि नॉर्मली आपको कभी भी फील नहीं होती है। इट इज फेल्ट व्हेन देयर इज अ एन्यूरिज्म इन द popliteal artery। देखें कंपैरिजन दोनों तरफ चलता जाएगा, एक आपने सिर्फ यूनिलैटरल एग्जामिनेशन नहीं करना। Again, just let me take the weight of your leg. I'm just going to feel the pulses in your groin now, Colin, and ask you to lower your boxes slightly. Yep. Femoral pulse at the mid-inguinal point. फेमोरल पल्स आप कैसे लोकेट करते हैं कि आपने जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे पेशेंट को, एक्सपोज करके थोड़ा सा ट्राउजर नीचे करके पेशेंट को आप बोलेंगे कि होल्ड करके रखे ट्राउजर को। आपने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एक फिंगर रखनी है, दूसरी फिंगर प्यूबिक सिम्फिसिस पे होगी, उसका मिड वे जो है वो आपका
मिड इंग्वाइनल पॉइंट होगा, उधर फेमोरल पल्स आपको फील होगी। I'm just going to have a listen to the pulse as well. Finally, Colin, I'm just going to assess the sensation in your legs and your feet. इस तरह से आपके पास कॉटन होनी चाहिए फॉर सेंसरी एग्जामिनेशन। देखिए, ब्रूई मीन्स के आपको अगर नॉर्मल अगर आपने एक साउंड सुनी हो तो एक हार्श साउंड आपको मिलती है जब आप रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वाटर पाइप लें, ठीक है, और उसमें से पानी जा रहा है और आप उसको जो है अगर ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो कितना तेजी के साथ उसमें से निकलता है। अगर आप उसको हाफ ब्लॉक कर दें फिंगर से तो किस तरह से तेजी से जाता है। इसी तरह से अगर कोई भी आर्टरी है और उसके अंदर ब्लॉक है तो जो ब्लड है वो उसमें से बहुत ही ज्यादा जो है वो टर्बुलेंस के साथ फ्लो करता है। उस टर्बुलेंस की वजह से जो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड जो है ब्रूई कहलाती है, ठीक है। उस साउंड को आप जो है वो इस तरह से ऑस्कल्टेट करते हैं, इसीलिए वो शो करती है आर्टीरियल स्टेनोसिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी कि अगर आप करके देख भी लें। ब्रूई हर उस जगह पे होती है जहाँ पे नैरोइंग हो जाए और वहां से हाई टर्बुलेंस के साथ जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द आर्टीरियल स्टेनोसिस, ठीक है। तो वो साउंड आपको वहां पे बहुत ज्यादा हार्श मिल रही होती है। क्लियर? ओके, तो अब एक कॉटन स्वाब आप जो है एग्जामिनेशन के लिए आपके पास होना चाहिए। इस तरह से आपने पेशेंट को बताना है कि स्टर्नम पे आप उसको या जो है पाँव पे ही आप उसको फील करवा के बता सकते हैं कि इस तरह से आपको फील होगा। नॉर्मल एरिया पे यूजुअली रखा जाता है, तो इसलिए स्टर्नम पे ये उसको करके अब बता रहे हैं कि इस तरह से जब आपको फील हो लोअर लिम्ब में तो आपने उसको बताना है जो भी एग्जामिनर है कि यस आई एम फीलिंग, जी हाँ मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। If you can shut your eyes for me now and let me know if you feel this on the right or the left leg. Okay. Right. Left. Right. Right. Left. So that concludes my examination. Thank you. ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और ऑस्कल्टेशन। इसमें हमने सारी चीजें जो है वो देख ली। अब जब आप एक दफा आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, अच्छा ये जो है आपकी एसोसिएटेड एग्जामिनेशन होती है, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप करते नहीं हैं। यहाँ पे जब आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गई आपने पेशेंट को जो है वो थैंक यू कहना है, कवर करना है पेशेंट को, ठीक है, और आपकी समराइज करनी है फाइंडिंग्स। जब आप ये आपने कर दिया उसके बाद आपने एग्जामिनर को कहना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि I want to complete my examination. I also need the proper cardiovascular examination as well as the proper neurological examination for any neurological deficit. तो उसको पता होगा कि आपको जो है ये चीज आती है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन इन दो कंपोनेंट के साथ होती है, ठीक है। तो ये बताना है, करके नहीं दिखाना, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है एग्जामिनर को कि कंप्लीट एग्जामिनेशन के ये दो पार्ट भी हैं, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
ठीक है, फिर आप अपनी फाइंडिंग्स जो है उसको समराइज करेंगे। चल लास्ट में अब हम पूरी जो वीडियो है इसकी एग्जामिनेशन की वो एक साथ एक फ्लो में देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ लें। अच्छा, इसमें इंस्पेक्शन में पैल्पेशन में टेंडरनेस चेक करने का तरीका नहीं बताया। टेंडरनेस जस्ट आपने दोनों हाथों से जो है वो हल्का सा प्रेस करके देखना होता है और पेशेंट जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने होते हैं, ठीक है। तो टेंडरनेस मस्ट चेक करनी है आपने। I'm just going to have a look at your legs and your feet now, Colin. Consent, then inspection from the right side. He's inspecting any color change in the both limbs, any scar, distribution of hair, shininess in both limbs, any loss of subcutaneous fat, muscle wasting, any amputated toe or previous scar of surgery, or any ulcer or associated discharge. ठीक है, ये सब चीजें आपने इंस्पेक्शन पे नोटिस कर ली। एंड आल्सो ऑन द बैक ऑफ द फुट and the normal skin in between the toes. I'm going to have a look at your toes now. If we could ask you to lift your right leg up, please, Colin. That's great. And your left leg now, please. Excellent. Thank you. And can you wiggle your toes for me, please, Colin? I'm just going to assess the temperature in your legs and your feet. Now the palpation, he's palpating the temperature on the foot, leg and the thigh. And I'm pressing your toes. इसी वक्त आप जो है वो टेंडरनेस भी चेक कर लेंगे on the foot, on the leg and the thigh. And then the third point is the capillary refill time. अब ये जो इसने प्रेस किया 5 seconds, उसके बाद छोड़ के ये देखें जो पैलर है, ये पैलर होता है और within 2 seconds it become pink in color. I'm going to feel the pulses in your feet and your legs. Now the pulsation. He is starting from the dorsal spadius artery. Compare both legs. Posterior tibial pulse. If you could let me take the weight of your leg now, please. Popliteal pulse. I'm going to have a listen behind your knees now. Again, just let me take the weight of your leg. That'll be good. I'm just going to feel the pulses in your groin now, Colin. And ask you to lower your boxers slightly. Yeah. I'm just going to have a listen to the pulse as well. Finally, Colin, I'm just going to assess the sensation in your legs and your feet. So I'm going to use this bit of cotton wool and it'll feel just like that. If you could shut your eyes for me now and let me know if you feel it on the right or the left leg. Right. Left. Right. And the sensory examination के भी 3 points देख लिया आपने foot पे. So that concludes my examination. Thank you very much for letting me examine you today, Colin. You can get dressed now. Thank you.
थैंक यू किया उसने पेशेंट को, उसका आपने जो है जो भी एक्सपोज्ड एरिया उसको कवर किया, और फिर आपने जो है वो अपनी फाइंडिंग्स समराइज करनी है। Today I performed a correct. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो फाइंडिंग्स बतानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो पेशेंट मिलता है और आपने एग्जामिन किया, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपने प्रेजेंट करनी है अपनी फाइंडिंग्स एग्जामिनर को। सो जैसे ही कंप्लीट किया आपने बताना है कि आई वुड आल्सो लाइक टू परफॉर्म, जो मैंने आपको बताया था कि कार्डियोवास्कुलर एंड द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो आप एंड में बता देंगे। ठीक है, सो एग्जांपल इज 34-year-old male patient lying comfortably over the bed and on inspection, and there was no scar, ulcer, loss of shine, reduced hair distribution or amputated toes was noted. There was no signs of peripheral vascular disease in the lower limb, and both limbs were symmetrically warm, non-tender, and there was normal capillary refill time. All the pulses were normal in volume and with the normal rhythm. और बर्जर्स टेस्ट का आप जो है वो आपने करके नहीं दिखाना है, तो वो आप इस यहाँ पे ओमिट करेंगे। और इसके अलावा आपने क्या बोलना है कि I want to conclude that the patient is having the normal peripheral vascular examination, and for the proper examination I would like to perform the proper cardiovascular examination and the neurological examination, and और फिर आपने एग्जामिनर को थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। ये एग्जामिनेशन आपने एक दूसरे पे अगर करेंगे परफॉर्म, तो आप लोगों के रिफ्लेक्सेस बनेंगे। इजी जो है वो एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसमें सबसे इजी एग्जामिनेशन होगी, टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए आपकी। 5 to 7 मिनट्स आपके रिफ्लेक्सेस ऐसे हो जाएंगे, ख़त्म करें आप सारे कंपोनेंट। आपको जो है इसमें आपने करके देखने हैं। अब वैसे ही आजकल हॉस्पिटल्स में जाना नहीं हो रहा, तो एक दूसरे पे परफॉर्म करें फॉर द गुड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, कोई क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू सो मच।